हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। Hello everyone, once again Dr. Praveen Parmar this side, and thank you so much for joining back to Vyapaar Jagat TV. And if you have not subscribed yet, so please do subscribe now, Vyapaar Jagat TV, and do not forget to click on that particular bell icon, and that is something which will give you a notification. So friends, today we have Dr. Silpa Chavan, and I mean she is a dietitian. एंड फ्रेंड्स हमने ये लास्ट आप एक बार 2 साल 3 साल वापस चले जाओ एंड एक बार आप देखो कि डाइट जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है. ये कोविड का जो टाइम था उसमें वी हैव लर्न लॉट मेनी सेशंस एंड आई थिंक फॉर एवरीवन हेल्थ इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न, डाइट और अ फूड न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए. सो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जर्नी ऑफ डॉक्टर शिल्पा एंड देन शी विल ऑल्सो एजुकेट अस अबाउट सर्टन टिप्स एंड थिंग्स की जहाँ पे डाइट जो है वो हमारी लाइफ में कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर शिल्पा एंड I request Dr. Silpa to introduce because she will introduce herself, then I think it makes more sense. So Dr. Silpa, thank you so much for joining this particular session, and it's over to you. You please introduce yourself and then I have a few questions about your journey. Yes, please. So hello everyone, hello Vyapaar Jagat. Thanks Dr. Praveen to give me this opportunity, and doing it yourself means a lot. And as you said, I will talk about myself to start with. So I'm Dr. Shilpa Chavan. I'm a dietitian. I'm from Mumbai. As a dietitian and a nutritionist, I give a lot of diet plans online, offline to all my patients all over pan India, and even in certain outside countries, maybe US, Dubai. So patients from there also. And basically I have been a medical doctor, and value added to it is a dietitian with 8 years of diet experience and 30 years of medical experience. So what happens is that my USP becomes a little stronger because having a medical background, you understand the patient well. When you give a diet, you understand which stage the patient is, even if it's a disease or even if it's a lifestyle problem or whatever the issue is, you understand a little better because of having a medical background. And that is how what advice you give for diet would be obviously comparatively better and more in the benefit of the patient, because the patient is one who has to be impacted, who has to be benefited, and who has to have that hope that he's going to be or she's going to be so much better in life after taking this dietetic advice. Because all of us have learned from the pandemic that how important the health is and how important immunity is. So diet and nutrition not only gives us good health, it gives us immunity. And it is that immunity which helps us to go through life and, to prevent ourselves from those attacking everyday new emerging, viruses and, different kinds of diseases, the monkeypox, the latest, in the list from UK, and so many other things. So we can face the problems with immunity better, and in a way we can also be a part of helping the exchequer, because we have seen in the pandemic how the whole system collapsed and how it was such a mess around, and we had a lot of unfortunate things happening with people, with life, with work, with so many things, and we don't want anything like that to repeat again. So we've learned our lessons, and pandemic has been the best teacher, and so the best teacher award goes to COVID-19 for teaching us that please take care of your health. And why health? Because health is wealth. Second, you are what you eat. आप जो खाते हैं बिल्कुल वही है आप. तो आप जितना अच्छा खाएंगे, जितना न्यूट्रिशियस खाएंगे और जितना सात्विक खाएंगे, तो उससे आपकी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिकार शक्ति है, वो इतनी अच्छी होगी कि आप किसी भी रोग का, आने वाले किसी भी रोग और कितने भी उसके थीम्स आए 1, 2, 3, 4, उस सब को आप अच्छी तरह फेस कर सकेंगे और आप अपनी हेल्थ बनाए रखेंगे. बिकॉज आप अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, सबके लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एक फैमिली आज किसी भी अपने घर के व्यक्ति को खोना, इट इज नॉट गुड. मतलब बहुत ही एक दर्दजनक हादसा है.
So one has to be very careful with the health, and that comes from diet and nutrition. क्योंकि जिंदगी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हेल्थ से ऊपर है. ये सब प्रायोरिटी की बात है. अगर हमारी प्रायोरिटी हेल्थ है तो उससे हमारी इम्यूनिटी है, और उसकी वजह से हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी है, तो वी कैन फेस द वर्ल्ड एंड वी कैन डू एवरीथिंग. आपकी जितने गोल्स है, आपकी जितनी ख्वाहिश है, आप जितना करना चाहते हैं हर एक फील्ड, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, आप सब कुछ कर पाएंगे. बिल्कुल 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 डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा. एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल आंसर. आई थिंक on top of introduction you have given lot of tips and the suggestions why health is so much important and why diet is so much important as far as health is concerned. So doctor, you have been into this particular the consulting domain since so many years, right? And now I have a very first question, and the question is how do you define success? एंड सक्सेस क्या है मतलब आपके लिए, प्लीज. सक्सेस कहा जाए तो एक, जब आपका कोई गोल है, मतलब आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, एक आपका गोल है, तो जब आपने एक गोल बना लिया है तो उसको पहुंचने का जो जरिया है उसको हम सक्सेस कहते हैं. सक्सेस कोई पॉइंट नहीं है कि आप इस पॉइंट पे पहुंच गए तो आपका सक्सेस हो गया, पर आपका जो जर्नी है, आपका जो रास्ता है, जो मुश्किलों भरा भी हो सकता है, आपको छोटे छोटे विन्स भी मिल सकते हैं, तो जो रास्ता है, जो आपको इस जर्नी जो है वो आपको जिस आपके मुकाम की तरफ ले जाती है, उसको मेरे हिसाब से मैं सक्सेस कहती हूँ. और रास्ते में बहुत कुछ होगा, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग गलत नेगेटिव एटीट्यूड वाले मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा रास्ते में, और बहुत कुछ अच्छा भी मिलेगा कि आपको छोटी छोटी विन्स मिलेंगी. मतलब आप कहीं जीत जाएंगे, कहीं हार जाएंगे, तो आप उससे बिल्कुल हताश मत होइए, पर अपने उठकर अपनी जर्नी, अपना जो रास्ता है उस पे लगे रहिए, डटे रहिए, और उसी को हम सक्सेस कहते हैं. क्योंकि सक्सेस जो है वो ऐसे कहा जाए तो 90% कन्विक्शन है. और कन्विक्शन क्या है? आपने एक गोल बना लिया, आपने एक मुकाम बना लिया, और आपको उसकी तरफ जाना है. तो जब आपको उसकी तरफ जाना है तो फिर रास्ते में कुछ भी आए तूफान, कुछ भी हो, you face it and just go ahead. So that is what for me success. Face it the way. परफेक्ट नो, वेरी वेल सेड आई थिंक. एंड काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो दे आर समटाइम्स नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज, और चैलेंजेस जो है वहाँ से वो गिव अप कर देते हैं, एंड they are not getting the success where actually they wanted to be. So बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने. डॉक्टर, आपके बारे में बताइए, how did you become a dietitian? What was your journey? And when you are a successful dietitian now, तो how it was all about your journey? Please आपके बारे में बताइए, how did you become a dietitian? Yes. मेरे बारे में बताने में दो चीज है कि मेरी ये जो जर्नी है डाइटिशियन की, वो मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंची. पहले तो मैं मेडिकली डॉक्टर थी और हूँ. आई प्रैक्टिस होम्योपैथी ऑल्सो अलॉन्ग विद डाइट. तो उसमें ये हुआ कि मैंने देखा बहुत सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें डाइट के बारे में पेशेंट्स को बताना पड़ता है. तो पहले तो व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डॉक्टर ऑल्सो, क्योंकि कोई डाइट जैसा सब्जेक्ट हमारे कोई मेडिकल इसमें कॉलेजेस में नहीं होता, इसलिए अपने को ज्यादा वी डू नॉट नो मच अबाउट इट. तो वी स्लोली लर्न एज वी प्रैक्टिस, एज वी एक्सपीरियंस. तो हमने ये देखा कि बहुत से पेशेंट्स को हमको डाइट के बारे में बताना पड़ता है ऑन द वे, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, एंड देन हमने बोला कि चलो हम किसी को रेफर कर देंगे किसी डाइटिशियन को. तो उनको वहां भेजते भेजते हमने देखा कि रास्ते में बहुत से लोग खो जाते हैं, या तो वो नहीं जाते हैं या वो पहुंच नहीं पाते हैं. तो हमने कहा कि ये तो बड़ी नुकसान वाली बात है, क्योंकि पेशेंट को राइट गाइडेंस नहीं मिलती है. तो इनका फिर ये कैसे किया जाए, क्योंकि डाइट भी एक आज इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, अभी एक केस मैं ट्रीट कर रही हूँ, सीए प्रोस्टेट का है. उनको बहुत सा डाइट का रिस्ट्रिक्शंस हमने बताए, तो उसकी वजह से और होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से आज उनका जो पीएसए है वो 33 से 27.9 आया है 3 महीने. और अब दूसरे 3 महीने गुजर गए हैं और उनको हमने अभी रिपोर्ट्स निकालने के लिए कहा है, और फिर वो हमें बताएंगे कि भाई क्या और, क्योंकि जब उनका एमआरआई स्कैन भी किया तो हमें ये मिला कि वो रिग्रेस हो रहा है. तो जब डाइट से इतना कुछ हो सकता है और दवाई के साथ साथ इससे और कुछ हो सकता है, तो क्यों ना इसको एक इम्पोर्टेंस दी जाए और क्यों ना पेशेंट्स को इसमें बताया जाए, बिकॉज ये उनके लिए बहुत इजी है. बिल्कुल डाइट की अपने रोज की जो बात है वो है,
घर में जो हम खाते हैं, जो बनाते हैं, और इसी फ्रूट्स के बारे में जो है, सीड्स के बारे में जो है, और हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लेते हैं उसके बारे में है। तो फिर व्हाई नॉट? एंड अगर वो इजी है, अफोर्डेबल है, इतना कॉस्टली नहीं है कंपेयर टू दी अदर ट्रीटमेंट्स, तो हम क्यों ना इनको लागू करें, क्यों ना लोगों को समझाएं, और क्यों ना लोगों का माइंडसेट इस तरह टिल्ट करें कि भाई आप सब अच्छी तरह खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, तो आपका हेल्थ जो है, आपकी हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी रहेगी कि आप सब कुछ कर पाए। और आज की दुनिया में ऐसा है कि जैसे दवाइयों का है, दूसरी रेडीमेड चीजों का है, तो इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स है, इतनी सारी चीजें हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए। इसीलिए उनको जब इस तरह का कंफ्यूजन हो किसी भी बारे में, तो उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और डाइटिशियन की हेल्प लेके अपना डाइट बराबर करना चाहिए। तो ये पेशेंट्स की बात से हमको ऐसा लगा, और मुझे ऐसा लगा खास करके कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, आई शुड वैल्यू एड समथिंग व्हिच आई कैन गिव टू माय पेशेंट्स एंड दे वुड बेनिफिट। तो मैंने आई डिड वन डिप्लोमा कोर्स एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। मैं हॉस्पिटल में काम किया, इन दी ओपीडी डिपार्टमेंट, इन दी आईपीडी डिपार्टमेंट, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम किया, डेडिकेटेड डायबिटिक सेंटर में काम किया जहाँ पे सिर्फ डायबिटिक लोग डाइट्स के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके पिछले 8 साल से मैं ये डाइट का कर रही हूँ। तो इस तरह की मेरी एक जर्नी रही, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी पर्सनल जर्नी का भी है। वे बैक इन 2008, I had also become careless because after my baby, and I was careless कि भाई ठीक है, you are in so much involved in the upbringing बच्चे के में कि आप अपने को second place देके भूल जाते हैं, and that is when I realized कि I had put on lot of weight। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर इट डजंट सूट मी, एंड एज अ पेरेंट आल्सो इट डजंट सूट मी, क्योंकि मेरा बच्चा भी मेरे को देख के क्या बोलेगा, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, मोटे हो जाओ, सब ठीक है, नहीं ये नहीं चलेगा। So I had this mindset change, and I met this friend of mine. She was also into exercising and all that. तो उनसे थोड़ी सी दोस्ती की, and I picked up the things and I picked up the threads. फिर I started putting छोटे छोटे steps, baby steps, कि भाई हम लिफ्ट में नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, we'll climb the steps, get down the steps, और आसपास की चीजों में जाएंगे तो हम गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, पैदल जाएंगे चाहे पसीना आए, कुछ भी हो। फिर थोड़े साल बाद ये सब हुआ, उसके बाद डाइट में कंट्रोल के व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट और व्हाइट फ्लावर, मैदा, मतलब ये सब चीजें मत खाओ, ये अच्छी नहीं होती है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जो हमने पढ़ा था वो हमने धीरे धीरे अपनी लाइफ में डालना शुरू किया, और इस तरह हमारी जर्नी शुरू हुई। तो पेशेंट्स के लिए भी और खुद के लिए, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन साथ में पैरेलल चल रहे थे। और अब आज इतने साल बाद, मतलब आज हो गए कुछ 2008 onwards, if you say 2006, 2021, तो कुछ 15 साल से, last 10-12 years I have been steady with my weight, and with losing weight and things like that, and my diet, and I am totally off sugar. White sugar तो मेरे लिस्ट में है ही नहीं। इससे दूसरा ये होता है कि जब हम ये सब करते हैं तो हमारा नजरिया बदलता है किस चीज में, कि हम जो लिस्ट बना के जाते हैं कि हमको ग्रोसरी स्टोर से क्या लेना है, उसमें ये हमारी चीजें नहीं होती, या हमको मॉल में जाके क्या खरीदना है, उसमें हमारी ये सब चीजें, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट मैदे वाली चीजें नहीं होती, रेडीमेड चीजें नहीं होती। हम ये भी थोड़ा सीख लेते हैं कि हमको बहुत सारी चीजें घर पे बनानी है, थोड़ी तकलीफ पड़ती है इनिशियली, पर एक बार ये होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें ये भी समझ में आता है कि नहीं भैया, हमको तेल भी बदलना है, हमको ये सब चीजें नहीं लेनी है, और जब हम ग्रोसरी का लिस्ट बनाएंगे तो उसमें हमें ये सब चीजें नहीं इंक्लूड करनी है, क्योंकि जब दिखेगा ही नहीं घर में तो किसी के हाथ में आएगा ही नहीं, और किसी के हाथ में जब आएगा ही नहीं तो वो खाएगा वही जो इजीली अवेलेबल है, जो फ्रेशली मेड है, जो होममेड है, इस तरह। you have to lead by example to the family members as well as to your patients। फिर हमें एक्सरसाइज की थोड़ी चीजें ऐड करनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई डिड, कि अभी आपको अगर रनिंग पसंद है, या आपको मैराथन पसंद है, या आपको वॉकिंग पसंद है, और नहीं पसंद है तो थोड़ा आदत डालिए, एंड यू स्टार्ट विद वॉकिंग, देन यू जॉइन द जिम। इस तरह स्टेप वाइज जाके, सीक्वेंस में जाके आप आगे बढ़िए। तो आज मैं एक मैराथनर भी हूँ, 10 किलोमीटर्स फॉर फिटनेस। मुझे कोई पोडियम प्राइज नहीं चाहिए, बट यस, मुझे फिटनेस के लिए
10 किलोमीटर्स तक करना है और उसको वही मैंने सीमित रखा है. आई डोंट वांट टू गो टू 21 आल्सो एंड नॉट टू 42 आल्सो. आई एम हैप्पी विद 10. बट कुछ भी ऐसा अपना एक मुकाम बनाइए और उस पे आप पहुंचते रहिए. दूसरा है, अगर आपको डांस पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, जिस तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद है वो भी आप करिए. तो उससे क्या होगा कि आपके फिटनेस लेवल मेंटेन होगा, और फिटनेस लेवल मेंटेन करेंगे, आपकी इतनी अच्छी एनर्जी रहेगी, आप इतने एनर्जेटिक रहेंगे कि अगर आपको कुछ है भी बीमारी, हाइपोथायराइड, ये वो, तो वो सब कंट्रोल में रहेगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे. यू नो, these lifestyle diseases will not be a issue, they will not be a hindrance in your way. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू तरह सो की मच ये मेरी डॉक्टर. जर्नी है हाँ, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ. नहीं, definitely. So, thank you so much for giving a detailed answer. I think we understood now that how you became dietitian, and you have also covered certain stories and a few tips and suggestions for the viewers. So I'm coming back to the original question, doctor, wherein you said you became a dietitian. So my next question is on your mission and vision. So when you became a dietitian, so at that time what was your thought process, and at that time what was your mission and vision, and today इतने टाइम के बाद आज आप वही मिशन और विजन पे काम करते हो, या यू हैव समथिंग एल्स आज की डेट पे? व्हाट इज योर मिशन एंड विजन, डॉक्टर? तो जब व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड आउट एज अ डायटिशियन, मेरा थोड़ा सा छोटा विजन था कि मेरे सामने जितने पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, उन सबको अच्छा डाइट दूं और वो समझे और वो फॉलो करे एंड इजीली उनको समझाया जाए, और जो भी कुछ चेंजेस करने हैं वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में और रोज के खाने में की जाए, ताकि वो उनको इजीली फॉलो करे. अगर हम कुछ हाई फाई देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, या कुछ और इस तरह देते हैं, तो लोग फॉलो नहीं करेंगे. 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन वहीं के वहीं, तो अपना तो जो इतनी मेहनत की है और समझाया है, डाइट प्लान दिया, इट comes back to zero. So no, do it within their normal way of life, with settling the jigsaw puzzle of time, of the type of food, the replacement, and the timing changes, and substitutions, but everything within that framework, and some changes here and there which are easily affordable. क्योंकि आज क्या होता है कि डाइटिशियन बोलते हैं तो लोग बोलते हैं वो तो लंबा बिल मांगेंगे, वो बोलेंगे ये हाई फाई करो, वो हाई फाई करो, और हमें तो कुछ नहीं करना है, और डाइट का मतलब स्टार्विंग होगा, वो कहते हैं कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो. तो ये नहीं होना चाहिए. ये जो मिथ्स है ना डाइट के बारे में, दे हैव टू बी बस्टेड इन अ वेरी बिग वे, और उनका माइंडसेट ओपन करना है और चेंज करना है. तो पहले तो ये मेडिकल एस्पेक्ट, पर अभी पेंडेमिक के बाद तो ये हो रहा है कि नहीं, ये छोटा सा जो विजन है उसको बहुत बड़ा बिग विजन करके फिट इंडिया करना, एंड टिल्ट द माइंडसेट ऑफ पीपल टुवर्ड हेल्दी. मतलब एक जीवन की शैली ही है जो हेल्दी होनी चाहिए. मतलब आपके जो ऑप्शंस है खाने में, हर एक रॉन्ग फूड का एक राइट फूड का ऑप्शन है. रॉन्ग फूड इसलिए क्योंकि उसमें जो चीजें यूज की जाती है वो गलत है. आप गलत नहीं हो, पर आपको जो लुभावना किया जाता है, आपको जो एड से अट्रैक्ट किया जाता है इसकी तरफ. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि जब आप कुछ देखेंगे टीवी पे, या यू सी सम मैच और समथिंग, तो आपको कुछ पीना ही है, तो इट गेट एंकर्ड इन द ब्रेन. तो हमको ये सारे गलत एंकर्स निकाल के सही एंकर्स डालने हैं. अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट है जो होता ही है. सो द फाइनल डिसीजन हैज टू बी डन बाय द पेशेंट देमसेल्व्स. बट अगर उनको कोई गाइड करने वाला हो, कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो, तो वो भी समझदार हैं, समझ सकते हैं, दे विल आल्सो पिक अप द करेक्ट थिंग्स. तो इस तरह उनको एक राइट ट्रैक पे रख के आगे ले जाना है, ताकि उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे. बिल्कुल. तो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे, यू सेड कि उस टाइम पे आपका विजन छोटा था, एंड सो नाउ व्हाट इज द न्यू विजन, वेयर आर वी नाउ? द न्यू विजन इज अ बिग विजन ऑफ फिट इंडिया भारत. एंड सो व्हाट आई डू इज कि उसके मैं बहुत सारे अवेयरनेस टॉक करती हूँ जितने मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं. See, I've done on Deutsche Bank, I've done on LIC, I've done on Seniors Paradise, I've done in Lions, I have done Go Happy Club, Gayatri Parivar, then even for different pharma companies I have done, for even for certain small corporates I have done. So various जितने मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, I talk about awareness. और दूसरा मैं एक और करती हूँ कि मैं लोगों को अभी लेबल्स जो होते हैं ना अपने रेडीमेड फूड्स पे, और जो हम लेने जाते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा पढ़ने का बता रही हूँ कि उसमें क्या चीजें ध्यान से देख के आप समझिए, पढ़िए, फिर उसको उठाइए. देखिए आज क्या गलत है, क्या सही है, इज अ वेरी रिलेटिव कंसेप्ट. बट आपके लिए क्या सही है
वो आपको समझना है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानकार रहोगे तो आप सही चीज उठाएंगे और उसका एक सब्स्टिट्यूट भी सही उठाएंगे। बिकॉज क्या है, ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज इसी वजह से है क्योंकि हमारे चॉइसेस खाने के गलत। और अब हम ज्यादा सब वी हैव बिकम 4 जो पहिए होते हैं जिंदगी के, और खास करके अच्छे अपनी लाइफ के, फॉर अ हेल्दी लाइफ, फॉर अ गुड न्यूट्रिशन इज गुड डाइट, एक्सरसाइज, good sleep and good choice of food. Sleep is also equally important. Sleep में हम लोग क्या सोचते हैं कि बस हमने 8 घंटा सो लिया, 7 घंटा सो लिया तो ठीक है। कभी भी मतलब अगर हम 2 बजे सोते हैं और 11 बजे उठते हैं तो ठीक है। एक्चुअली वो गलत है। हमारी लाइफ जो है, इट हैज टू बी फॉलोइंग अ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या है? सिंपल, सनराइज टू सनसेट। तो सन के साथ उठिए और सन के साथ सोइए। तो हमारा बेसिक जैसे हर गाड़ी रिपेयर में गैरेज में जाती है, ऐसे हमारा बॉडी रोज रिपेयर में जाती है और उसका टाइमिंग्स है रात की 11 बजे से 4 बजे। ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा सारा प्रोटीन बॉडी मैकेनिज्म रिपेयर में जाता है एंड एवरीथिंग इट अंडरगोज द चेंजेस विथ हार्मोनल चेंजेस। मतलब जैसे मेलाटोनिन विल बी एट अ हायर लेवल or the other hormones will be at a lower level, and in the morning when you have to get up, cortisol will be at a higher level, तो आप उठ सकते हैं। So we say ना, we thank that हम लोग सुबह उठे, we thank God for that. So why? It is because of hormones. तो ये सब चीजें, ये जो साइकिल है hormones की, इसको नॉर्मल रखने के लिए हमको सर्केडियन रिदम फॉलो करना है। इसलिए हमारी 6 घंटे की या 7-8 घंटे की जो स्लीप है वो 11 से 6 के बीच में होनी चाहिए। नहीं कि कैसे कि रात को 2 बजे सोए और सुबह उठे और हमने घंटे गिन लिए। तो घंटा गिनना नहीं, हमको टाइमिंग गिनना। तो इस तरह खाने में भी हमको यही देखना है कि हम अगर टाइमिंग्स मेंटेन करें तो बहुत कुछ नेचुरली कम हो जाए। बिल्कुल, and that is, I think, that is very much required these days because we are now living in a different world now, because altogether technology has changed so many things. Technology has changed all our habits and everything, and I think that's a very good suggestion and the tip from your end, doctor. And I personally I strongly believe into this particular thing wherein we have to have the right schedule and routine, and that is very important. So doctor, अभी बात करते हैं कुछ आपके achievements के बारे में, and I know so one thing which is very close, and you are Vyapaar Jagat award winner for the year 2021 and yes, so yeah, so इसके अलावा what are other achievements you do consider wherein you can count achievement as anything, right? So please tell us about your achievements and success. First, so now I am in BNI, for the past 1.5 years. तो मैंने ये देखा है कि since I am a part of it and repeatedly every week, I bombard them with some kind of 30 seconds and presentations and all. So they have registered a few things. तो पहला success तो मुझे वो लगता है, like they have learned to understand the meaning of eat the rainbow, food is medicine. तो eat the rainbow ये उनको समझ में आने लगा है, and many people have started putting in practice. They give me the feedback कि भाई नहीं, हम लोग ये सुनते हैं, समझते हैं। फिर दूसरा, reading the labels they have learned, different types of salts. तो इस तरह different presentations जो मैंने दिए हैं वो उन लोगों ने समझे हैं, and they are trying to put it in practice. So मेरा जो BNI का जो sales team है, all my members, now they are into it, and they are also helping me that no, what you are saying we are trying to understand, we are trying to spread awareness in the family and other. दूसरा, हमने एक छोटी सी ई बुक बनाई है जिसमें मैंने आई लाइक टू कुक, तो मैंने बहुत सारे उसमें सैलड्स वगैरह और रायतास जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीडे थिंग्स, एज वेल एज जैसे हम इवनिंग में सजेस्ट करते हैं सूप्स एंड सैलड्स, तो लोग कहते हैं सैलड्स क्या, 3 ही चीज घूम फिर के कि भाई यू हैव दीस 3 थिंग्स, अनियन, कुकुम्बर एंड टोमेटो, एंड दैट्स इट. So the thinking of salad should not end there. There are lots of varieties of salads which you can do, and say about 25 of them I have prepared, I have photographed, and I have made a book, and I have put it up, and उसमें से भी मैं I try because वो wholesome हो जाते हैं. Many of them are wholesome, many of them are protein rich, many of them are meal replacing. तो क्या होता है कि उसके साथ अगर कुछ हम कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे सूप्स हो गए या दलिया हो गया, या ऐसा कुछ हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सप्लीमेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पूरा मील हो जाता है.
people who are working, both of the people who are working and they don't have time to cook in the evening, तो इवनिंग में आके अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया, सूप्स बना लिए, प्रोटीन रिच सैलड बना लिया, तो इट इज क्वाइट कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड होलसम एंड हेल्दी एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो दोनों थके हुए हैं तो कौन किसको ब्लेम करे कि भाई आप बनाओ। इससे अच्छा है कि हम इजी कुछ बना लें तो हमारा काम हो जाए। दूसरा ये कि बहुत से किड्स दे ट्रैवल आउट, बहुत से पीपल दे ट्रैवल आउट फॉर देयर वर्क, सम ट्रैवल आउट फॉर स्टडी, तो अब उनको भी तो खाना बनाना नहीं आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू कैन नॉट कीप ऑन बाइंग थिंग्स, तो ज्यादातर इट विल बी, इफ इट इज यूएस दे विल हैव बिग साइज पिज़्ज़ास कमिंग इन और बिग साइज थिंग्स बिकॉज दे बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कि नहीं खाया तो फेंक दो। बट अपने यहाँ इंडियंस में ऐसा नहीं, हम कहते हैं कि नहीं हम खाना फेंकना नहीं जानते, इसलिए हम गलती से सब खा जाते हैं, तो वी टेंड टू ओवर ईट। तो यूएस में प्रॉब्लम पुटिंग ऑन वेट इज व्हाई बिकॉज दे ओवर ईट। एंड हमारे यहाँ ये है कि बिकॉज वी आर our kids never stay away from family and they are never by themselves, so they do not know at times to cook, so they learn with the experience. So salads is something they can start outright because though they are novice, it's very simple and they can start with simple to a little complicated and then they can really enjoy themselves. That is why this book about salads. And the other things, like I have got another awards also. One I got for being a dietitian itself from the education forum way back in 2017, and second I got for the medical services which I do. I do a lot of free camps, and do a lot of services, giving free camps at Lions and at various other forums, and so for that I got for medical services. Then I got this Naari Sanman award because I created a vertical in a platform called Wiki, that is Women Entrepreneurs International Chamber. I created a vertical of health and forum in which I, about 15 to 16 doctors were, interviewed during this period of COVID-2, which was the bad phase of COVID, and each, like for example, a pediatrician or maybe a gynac or maybe a orthoped, different doctors of different faculties went to, and each had to give the details as to what type of COVID symptoms they had in their sphere and how did they treat the patient. So it was giving out first-hand information, to the people, so that they believe in something and not into the Google knowledge, or not into the WhatsApp encyclopedia. गलत इन्फॉर्मेशन से सही इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर्स के इन्फॉर्मेशन से, दैट हेल्प्स। तो उस हेतु से हमने ये पूरी सीरीज की थी, तो हमें नारी सम्मान अवार्ड उसमें मिला। एंड सिमिलरली आई डिड समथिंग फॉर गुजरात मेंटल काउंसिल, एंड दैट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर मेंटल इलनेस। दैट वाज अ वेरी recent feature way back in February, March, and beginning of April. Say about 7 different therapies, starting with homeopathy, flower therapy, chakra therapy, sound therapy, and ओजोन थेरेपी। इस तरह की 5-7 डिफरेंट थेरेपीज को फोकस में लाके बताया गया कि दीज आर द ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और इवन द कॉम्प्लीमेंटिंग थेरेपीज विद द मेन थेरेपी, सो दैट you don't have to increase the dose, you can prevent the side effects of the medicines and all this. So this is how overall approach is to be given. Super, super. Yes, and absolutely, yeah, various things. I mean, you have a lot of recognition to share, and yeah. So, doctor, now I just want to understand. So, because recently I came to know that you are also an author. So you have also written so many things. So, how that transformation was happened, doctor? Can you say something about it? Transformation of? I mean, how did you become an author? Yes. Oh yeah. See, actually, the credit of this goes to my community, and that is called the TLC community, and that is teachers, leaders, and coaches. I'm an aspiring health transformation coach, and we have to be, we have to learn how to do your webinars on this. How do you talk to people? How do you make? So during this learning, this transformation has taken place, that you have to be an author, because if you be an author, you become an authority on your subject, and this writing is itself a journey, and it is a self-evolving journey. But during writing you realize so many things. Okay, this is to be done, this is done, अच्छा ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए. So that self evolution itself helps you to undergo the transformation, and so you get that kind of confidence to face the world, because your idea is to impact the life of people with diet, and our motto is to impact 1 billion lives, not less.
1 billion lives. So if that is the impact you want, you have to be an authority on your subject. And to be an authority on your subject, you have to undergo this transformation from being a simple dietitian to an entrepreneur to an author. And that is how the things go. So that is how the conversion is taking place. And now I've started writing my physical book, which is called Nutrition, the Ultimate Game Changer. Superb, superb. So I think this conversation is also going to so long, but just to make it short, because बहुत लंबा इंटरव्यू जो है वो लोग देखते नहीं है, so that is something Sure. we have realized. So now before we conclude this particular interview, doctor, I have one last question, and the question is, what message do you want to convey to the entrepreneurs especially? Yes. The message what I want to convey is that they should have a good diet and nutrition. They should follow the 4 pillars of life: good diet and nutrition, good sleep, good habits, and I forget the 4th one. Sleep, diet, exercise. So exercise should not be something which you do once in a way. Exercise also should be a part. So ये 4 wheeler पे अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाओ. So everything will be fine. काफी अच्छी रहेगी ये जिंदगी. बिल्कुल. मजे भी कर सकते हैं आप. You can enjoy your life, you can serve, you can impact, you can always be a lifelong learner. All these things can you do if you have good health, and good health के ये 4 wheeler पे गाड़ी चलाएगी. Superb. And 4 pillars, let me just recollect. So 1 is diet, 2nd is habits, 3rd is sleep, and 4th is exercise, right? Yes. Perfect. So I think for me also this is a lesson of the day and learning for this particular session. So yep, doctor, so thank you so much for joining to this particular session, and it was wonderful talking to you, and thank you so much for sharing, I think, a lot of suggestions, lot of tips and stories, and I'm sure a lot of our viewers will learn about these particular things, and especially the 4 pillars is something which everybody can take at home, and I think they can start implementing and following these particular things. So it was really wonderful talking to you, doctor, and thank you so much once again. Thank you, Vyapaar Jagat. Thank you, Dr. Praveen, for giving me this opportunity. Thank you. My pleasure, my pleasure. And viewers, so still if you have not subscribed, so one more request, kindly subscribe Vyapaar Jagat TV, and do not forget to click on that particular bell icon, and we will be coming up with lot many other interviews and such stories, inspiring stories, and lot of things to learn out of those sessions. So stay tuned, and thank you so much. Have a great time. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हर व्यापार को दे पहचान।